come at a point where you can connect to this space, that this cleansing of this vessel is the first thing that you need to focus upon. I Hi, Namika Karma. Um, Hello. I have a Hi, question Rupali. about. Hi, I have a question about. In the phase when you have already, or you are trying to already move on from a relationship, and you are letting it go and everything. You're working on that, but it happens most of the times that something reminds you, or you just call out that person's name for no reason, like it's not there at all, but you just still do such things which will remind you, or certain activities. So I'm just not sure how long it's gonna take for all that, or what can be done about it. What are you doing to get out of that? Hmm. Right now I'm just focusing on my work and my career and all those things, and I'm doing everything except No, I trying to. am asking ki what are you doing about those triggers? What have you done? So basically, you're saying ki what you're doing is not think about those triggers. Is that what you're saying? I guess yes. कैसे जाएंगे? Okay. Just because you are putting it on the side and you are keeping yourself busy, distracting yourself from resolving it, तो कैसे जाएगा? तो Okay. वो तो वापस आता ही रहेगा ना. वो तो इंसिडेंट्स तो होंगे ही लाइफ में, वो तो आते ही जाएंगे, वो तो ट्रिगरिंग मतलब डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अ क्योर. Okay. आपको अगर बॉडी में टांग में दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जाके अगर उसको इलाज नहीं करवा रहे हो, बट यू आर जस्ट मे बी कीपिंग योर सेल्फ बिजी टू नॉट फील इट, नॉट थिंक अबाउट इट, तो वो तो रह रहा है कि कभी ना कभी उठेगा ही. वो तो आता ही रहेगा. तो हाउ इज दैट ट्रीटमेंट? एक चीज मुझे और पूछनी थी से. So, see, I mean, because we have known you for quite a long, तो आपको प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस है, ठीक है? आपको सोल्यूशन की भी अवेयरनेस है, आपको पता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है. तो यहाँ पे मुझे मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप ये चीज बोल तो रहे हो कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू रिजॉल्व दीज थिंग्स एट द डीपेस्ट लेवल, विच शोज कि आप एक्चुअली इन चीजों को रखना चाहते हो अपने साथ. आप इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि ना ये कहीं ना कहीं चलता रहे. तो इवन दो व्हाट यू आस्किंग इज कि मैं इन सब चीजों से बाहर कैसे निकलूं, बट व्हाट द मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज कि मुझे कहीं ना कहीं ये चीजों को बचा के रखना है. I ठीक है, तो यहाँ believe, पे yeah. Yeah, हाँ. like it is kind of true, because I am sometimes in a dilemma, like uh there is little hope. It's always there that what if things work out, and what if that person realizes his stuff, and what if he wants to improve and needs another chance. एक मिनट, एक मिनट, बट एक मिनट रूपाली, एक मिनट, ये इसका और इसका क्या लिंक है? If the person does realize, if the person does this and they want to come back, that's good. But wouldn't it be good if the person come back to a more healed person? So Yeah. why would you expect somebody returning back to a sick person? Mm-hmm. इन दोनों का लिंक क्या I है? feel like आपने if I कुछ work on whatever issues, maybe I will completely get over that person and the love will go away, and then I wouldn't be able to accept that person.
Okay, Like I'm right. scared to let him go तो because I अगर मैं इसको एक एनालॉजी के एंगल से समझूं, अगर मैं इसको एक ऐसे एग्जांपल जैसे बोल रहे हो आप, तो मेरे को एक इमेज ऐसे आ रही है कि दो सिख लोग हैं हु फॉल इन लव विद ईच अदर। उसके बाद एक ने रियलाइज किया कि आई एम सिक, दूसरे ने अभी तक रियलाइज नहीं किया है। एक ने रियलाइज किया कि आई एम सिक, बट दैट सिक पर्सन आफ्टर रियलाइजिंग ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी एक्शन, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैं ठीक हो गया तो ये जो सिक पर्सन है ये मेरे से प्यार करना छोड़ देगा। not him, but I feel like I will. और यू विल, हाँ, और Yeah, यू विल स्टॉप। तो yeah. बेसिकली यू आर नॉट इन लव विद द पर्सन, यू आर इन लव विद द सिकनेस ऑफ दैट पर्सन। Okay. I didn't understand that part. अगर आप उस इंसान से प्यार करते हो तो आप खुद को हील कर रहे हो, इससे वो प्यार छूट जाएगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आप अगर उस इंसान की सिकनेस से प्यार कर रहे हो तो आप ठीक हो जाओगे, तो आपको सिकनेस जो है अट्रैक्टिव नहीं लगेगी एनी मोर, फिर वो छूट जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान से प्यार करते हो तो छूट कैसे जाएगा? आप ठीक हो रहे हो तो वो छूट कैसे जाएगा? Okay. Yeah. Like as in when I'm In fact, wouldn't analyzing. you be more, you would be more motivated to inspire that person also to heal, or even they will feel more inspired to heal themselves। लेकिन Okay. अगर आपको उस इंसान से नहीं, उसकी सिकनेस से प्यार था, तो 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 हाँ, फिर मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, फिर देन डोंट डू एनीथिंग। Okay. लाइक मैं जितना एनालाइज कर रही हूँ उतना मैं उससे ज्यादा डिटैच हो रही हूँ, तो मुझे बस ऐसे लगा कि इफ आई get into all that, resolve my issues, maybe I will completely forget about him. I was feeling like that. हाँ, And I और really. उसमें किसी और की सिकनेस से आप बार बार सिक हो रहे हो, या यू आर टेकिंग द जर्म्स एंड यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट, तो आपको वो रखना है, क्योंकि दैट इज अ वे फॉर यू टू शो टू द अदर पर्सन कि आई लव यू। Okay. तो मैं अगर अगर ऐसे मान के चलो कि, चलो दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ, अगर अगर समझ में आए तो। लेट्स से कि यू यू आर अ मदर एंड यू हैव अ चाइल्ड, ठीक है? आपका एक बच्चा है, आप मदर हो, आपका बच्चा बीमार हो गया। अब उसकी देखभाल करने के लिए आप उसके पास आते हो एंड यू कैच द जर्म्स एंड यू आल्सो फॉल सिक। नाउ बच्चा भी बीमार है, आप भी बीमार हो, वुड यू बी एबल टू नाउ लुक आफ्टर द चाइल्ड? Not at all. ओके, सो नाउ यू रियलाइज दिस कि अरे मैं बीमार हो गई हूँ, तो बच्चा भी बीमार है, तो मुझको, मैं पहले अपने आप को ठीक कर लूँ। लेकिन तुमने अगर अपने आप को ठीक कर लिया, तो इसका मतलब कि यू आर अबैंडनिंग द चाइल्ड, यू डोंट लव द चाइल्ड, यू विल ओनली बी एबल टू शो द चाइल्ड कि यू लव देम बिकॉज यू आर ऑल्सो सिक बिकॉज ऑफ देम। इज दैट योर वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव? Mm-hmm. So Got that is it. exactly what you're doing। Okay. खुद बीमार रह के दूसरे को कैसे ठीक करोगे? और अगर खुद ठीक हो रहे हो, तो अगर खुद ठीक हो गए हो तो अपने बच्चे से फोकस हटा लो। I have no answer to this question, because when I'm trying to work on myself, I feel I'm going away from that whole thing. Or maybe I am going away from that cycle, that toxic cycle, but I still love the person from at the heart level, I think. That is what I am asking you ना, कि what exactly are you going away? Are you going away from the sickness or are you going away from the person? Okay, I think the sickness.
So if you're going away from the sickness because by working on you, you are going away from the sickness. तो इसमें गलत क्या है? Nothing. But you consider it wrong. I feel like if I break that cycle or something, maybe now I am thinking what you were saying earlier, that maybe he wouldn't come back because his needs are different. Right. So his need is to be with a sick person, and that's Okay, why you're maintaining your sickness. okay, okay. तो फिर तो सॉल्यूशन क्लियर ही है आपको, फिर तो यहाँ कुछ करने के लिए है ही नहीं. So you are in love with a guy who is sick and who also wants their partner to be sick. Mm-hmm. तो stay sick ना, फिर confusion क्या है? But that's not healthy as well, and I'm not तो just ये तो meant for लॉजिकल, ये तो yeah. आपका लॉजिकल माइंड बोल रहा है ना, आपका हार्ट तो नहीं बोल रहा ना, ये तो आपका ब्रेन बोल रहा है. आपका हार्ट तो सिक रहना चाह रहा है ना, क्योंकि दैट्स व्हाट योर पार्टनर एक्सपेक्ट्स, दैट्स व्हाट योर पार्टनर वांट्स. Mm-hmm. That's true. If हाँ, I don't act as per what's expected, then it's never gonna. I mean, it won't continue further. हाँ, हाँ, तो देयर इज अ चांस दैट इट वॉन्ट कंटिन्यू, क्योंकि योर पार्टनर wants a sick partner and you want to look after yourself, you want to heal yourself, but that's not what your partner wants. Yeah, तो फिर do that now, because that's what you want to do. You to then stay sick because that's what your partner wants, and that's the only way to stay connected. but it's all very toxic and abusive and all that, so I wouldn't want to do that either. पर वही तो उसको चाहिए, that you are not understanding. You love that thing only ना, somewhere you love that thing only. वही तो उसको चाहिए, तो उसको तो मिल रहा है, I आप love छीन that रहे हो उससे. person, बाय not वर्किंग ऑन not that योरसेल्फ thing. यू आर. हाँ, बट ये तो ऐसा हो गया ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी, तो हेड्स भी मुझे चाहिए, टेल्स भी मुझे चाहिए. Mm-hmm. हाँ, तो जब तक वो रियलाइज नहीं करेगा इस बात को, तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे? Okay. आप तो उस स्पेस पे ही डिसीजन बनाओगे ना, जो 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 इंफॉर्मेशन आपके सामने आज की डेट में इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. You are expecting an outcome based on something that will happen in future, where he may realize or may not realize, but you want that right now. Okay. You want him to realize right now all that, but that's not up to you. आपको तो इस डिसीजन इस बेसिस पे लेना है कि आज क्या है मेरे सामने. आपके सामने आज ये है कि you have a partner who is sick and who expects their partner to remain sick also, because that is the only way he knows how to manage a relationship. तो वो तो है, Exactly. वो तो Yeah. सेटअप एग्जैक्टली है. तो फिर तो कुछ यहाँ करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने का फिर रिस्क ये है कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा, और वो रिस्क आपको लेना नहीं है. तो फिर तो कुछ एक्शन बचता ही नहीं है यहाँ पे. Okay. So the solution would be that I take my actions and everything, and whatever happens about the relationship, just let it be. Right? No, the solution is first you decide कि what kind of relationship you want. I want a healthy and secure type of So if this relationship. person is not, हाँ, तो if this person is not capable of giving it to you, वो बंदा सिक है, आप चाह रहे हो कि मेरा पार्टनर हेल्दी हो, वो सिक है, उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो सिक है, उसको लग रहा है वो हेल्दी है, वो उसको कुछ करना ही नहीं है, आपको दिख रहा है कि वो सिक है,
उसको कुछ करना नहीं है और आप उसी उम्मीद में बार बार हो कि ये हेल्दी हो जाए, ये हेल्दी हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, तो बढ़िया हो जाएगा, जब होगा तब होगा, आज वो की डेट में तो कहता नहीं तो है। है कि उसको वर्क करना है, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग। हाँ, तो फिर वर्क करना है, इस पे कोई प्लान थोड़ी बनाया जाता है। वर्क करना है का क्या मतलब? या वर्क कर रहा he हूँ keeps बोलना on चाहिए। yeah he keeps on हाँ like delaying हाँ it and putting हाँ। it like तो हाँ next month, next 6 months बाद दिसंबर हाँ में तो ऐसे। हाँ तो ठीक है। तो फिर यू हैव इट क्लियरली इन फ्रंट ऑफ यू ना, तो अब उस बेसिस पे डिसीजन बनाओ ना। यू हैव टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव राइट नाउ, नॉट व्हाट यू वांट टू हैपन इन फ्यूचर। हम्म तो जो आपके सामने इस समय है वो तो एक सिक इंसान है, जिसको एक सिक रिलेशनशिप चाहिए, एक सिक पार्टनर चाहिए, वो आप हो। हम्म तो दिस इज फाइन। तो ये तो बढ़िया है, मतलब ये तो करेक्ट है। इसमें तो कुछ है ही नहीं चेंज, ये तो इक्वेशन बिल्कुल साफ साफ बैठी हुई है। इसीलिए तो वो कुछ कर नहीं रहा है। हम्म इसमें वो मैं क्यों करेगा? एक चीज और बोलूंगी इसमें, कि रूपाली, एक आपने सेंटेंस बोला था ना कि आई फील दैट इफ आई हील माई सेल्फ आई विल स्टॉप लविंग दैट पर्सन। हम्म ठीक है, तो ये जो चीज आप बोल रहे हो ना, दैट आई लव दैट पर्सन, मैं तो उस नोशन को ही एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बिकॉज मैं इफ यू भी नहीं लव कर दैट सकता हूँ, मैंने पर्सन भी वही यू चीज। विल, या यू विल हाँ, लव दैट आई पर्सन, ऑल्सो से उसका या यू लव लेना द देना ही सिकनेस ऑफ क्या दैट है। पर्सन, यू डोंट लव द पर्सन। एग्जैक्टली, सो यहाँ पे इट्स नॉट दैट ही वॉन्ट्स, यू नो, you're doing this because, if you are sick then he will love you, you are toxic he will love you for that. You are also in the same boat. ओके ठीक है, he, you are also loving him for his sickness and toxicity, not because any of you love each other. क्योंकि लव और ये टॉक्सिसिटी, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। पीपल हु ऑपरेटिंग फ्रॉम टॉक्सिक पैटर्न्स, उनका लव भी उसी स्पेस से आएगा। इट इज लव आउट ऑफ अटैचमेंट, इट इज अटैचमेंट, इट इज नॉट लव। लव का तो बेसिक डेफिनेशन ही होता है फ्रीडम, being able to acknowledge and accept, and it's a very different space in itself. It's neither हम्म neediness nor clinginess, not wanting to be sick, toxic, not continuing to repeat the same patterns. तो पहली चीज तो you need to understand this thing कि what you're calling love and what you're calling, you two are attracted to each other for, it's not love, right? Because आपको, if you heal yourself and you become empowered, if you become whole in yourself and you still love that person, you can say that, aha, I love this person, right? Abhi to it is about कि you if you stop being sick, then he will not love you. If you become healed, then you will not love him. तो ये तो ऐसा चल रहा है कि मतलब ये अगर ये अटैचमेंट कंटिन्यू करनी है तो सिक रहना पड़ेगा, टॉक्सिक रहना पड़ेगा। हाँ, इसको ऐसे समझो, एक अगर इसको एक और एग्जांपल से मेरे के अभी दिमाग में आया, ऐसे समझो ये सिकनेस वर्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं कि लेट्स से यू आर नॉन वेजिटेरियन, ही इज वेजिटेरियन। तो ये बात हो गई कि तुम वेजिटेरियन हो जाओगे या तुम नॉन, या वो हो जाएगा तो हम एक दूसरे को छोड़ देंगे, वही रहोगे तो वही चलेगा। तो इट्स अबाउट कि व्हाट यू डू, तुम्हारे लाइफ के प्रेफरेंसेस के ऊपर। तो इंसान को तो लव नहीं कर रहा ना तो। ओके या ये इफ तो आई यहाँ पे ये हो लॉजिकली रहा है कि थिंक अच्छा, या अगर मैं वेजिटेरियन बन जाऊं तब वो मेरे को लव करेगा, लेकिन अगर मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगी तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि देन आई लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड। तो इसलिए तुम पजल दो कि मैं वेजिटेरियन बनूं या नहीं बनूं। हम्म
बट इसमें पर्सन कहाँ है? हम तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड डिस्कस कर रहे हैं, हम पर्सन कहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लव कहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम? Okay. दैट इज द सेम एनालॉजी। हम तो सिकनेस डिस्कस कर रहे हैं, हम लव कहाँ डिस्कस कर रहे हैं? आप जिसको लव बोल रहे हो, हमें तो वो सिकनेस दिख रही है। I see. हमें तो ये दिख रहा है कि आप एक दूसरे की सिकनेस से अट्रैक्टेड हो, Okay. और आपको ये दिख रहा है कि अगर मैंने सिकनेस को ड्रॉप कर दिया तो फिर ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो लव कहाँ है? पर्सन कहाँ है बीच में? I'm just scared of the outcome. If I am healed, then what happens? Like, I'm just scared of the outcome तो because उसी के लिए तो बोल रहा हूँ ना रूपाली, उसी के लिए तो बोल रहा हूँ, आई एक्नॉलेज दैट यू आर स्केर्ड, तो उसी के लिए तो बोल रहा हूँ डोंट डू इट। क्यों परेशान कर रही हो अपने आप को इतना? I would want to बट heal यू आर my स्केर्ड ना, issues. तो आई एम सेइंग यू आर स्केर्ड, डोंट डू इट। दैट्स व्हाट मैं भी तो इतनी देर से यही बोल रहा हूँ, मत परेशान करो अपने आप को, इतनी छोटी सी जान को इतना परेशान क्यों कर रही हो? छोड़ दो ना, जस्ट स्टे द वे यू आर। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग स्केर्ड और But then एनीथिंग। I am not happy with the sickness being with me. तो यू हैव टू डिसाइड ना कि हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्केर फियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को तोल के तुम डिसाइड करोगी ना। Yeah, I think happiness दोनों is को more जब तोल रही important. हो तो कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Happiness and freedom. That's more important. ये तुम बोल रही हो लेकिन मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब मुझे सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल आंसर लग रहा है। मुझे हार्ट वाला आंसर तो ये बिल्कुल फील हो ही नहीं रहा। हार्ट से तो मुझे यही फील हो रहा है कि बट आई एम स्केर्ड बिकॉज आई विल लूज। क्योंकि तुम्हें अपनी आजादी से ज्यादा उसकी गुलामी ज्यादा प्यारी Yes, I think so. Yeah. है। हाँ, तो हार्ट से तो आ नहीं रहा। ये आजादी की लड़ाई तुम हार्ट से नहीं लड़ रही हो, ये तुम सिर्फ अपने इंटेलेक्ट से लड़ रही हो, जो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। Okay. दिल से आवाज नहीं इनफैक्ट आ रही मुझे मेरे तो को, ये लग दिल रहा से नहीं है लग रहा कि कि तुम्हें आजाद होना है। नहीं, इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि यू ऑलरेडी आर इन योर हैप्पी प्लेस, क्योंकि आपको यही डेफिनेशन पता है हैप्पीनेस की। यू ऑलरेडी आर हैप्पी। आपको इसी में ही हैप्पीनेस मिल रही है, इसी में ही, आई डोंट नो इफ वी कैन कॉल इट हैप्पीनेस, बट टू व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, यही हैप्पीनेस है, क्योंकि इसमें जूस मिल रहा है, इसमें मजा आ रहा है। इसमें ये है कि there is one toxic pattern where it's hot, then it's cold, and then there is a phase where there is a lot of love bombing, and again that cycle is going. Then there is a period of no contact or whatever. So whatever, like it's one cycle, so it keeps on repeating. And I am really sick of that. I want to get out of it because it's not making me happy, and it's not 100% thing that I want. I want like 100% good, happy relationship, but it has all these toxic phases and everything, which I'm not okay with. So I really want to change, and that's why I'm putting in so much of efforts. But I don't know. I just feel like नहीं, एक मिनट रूपाली, आई थिंक यू नीड टू रिफ्रेज दिस सेंटेंस। okay, क्योंकि ये जो तुम बोल रही हो ना, ये सेंटेंस गलत है। यू आर सेइंग कि आई वांट अ हैप्पी लाइफ, आई वांट दिस लाइफ एंड ऑल दैट। नहीं, ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस है कि ये सब तुम उस इंसान के साथ चाहती हो, yeah, yeah, है ना? हाँ, ये yeah, बोलो। ये मत बोलो कि आई वांट अ हैप्पी, क्योंकि व्हेन यू से आई वांट अ हैप्पी लाइफ, देन बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि आई एम ओपन टू एक्सप्लोर कि मेरे को और कौन दे सकता है। बट तुम्हें, यू आर नॉट ओपन टू दैट, यू वांट इट फ्रॉम दिस गाय ओनली। yeah. That's very true. I am not able to हाँ, forget it करेक्ट। or तो let ये it go. बोलो, हाँ, Yeah, तो ये बोलो कि आई वांट हैप्पीनेस फ्रॉम हिम ओनली। You are yeah. not That's open to, you are not open to find happiness, you are only open to find happiness from this guy.
Yeah, I'm just stuck there. I do not हाँ, see तो इसीलिए मैं myself. इसको बोल रहा था कि हेड्स और टेल्स तुमको दोनों ही जीतना है। I see. तुम उस इंसान से हैप्पीनेस मांग रही हो जो केपेबल ही नहीं है देने, बट यू आर नॉट ओपन टू एक्सप्लोर इट एनीवेयर एल्स, यू ओनली वांट इट फ्रॉम दिस गाय। दिस इज द रीजन ऑफ बीइंग स्टक। Okay. Yeah, इसीलिए सेंटेंस जब बोलो तो ये बोलो कि आई वांट अ हैप्पी लाइफ बट ओनली विद दिस गाय। that's true. क्योंकि तुम जब ये किसी को बोलती हो कि आई वांट अ हैप्पी लाइफ, तो सुनने वाले को ये लगता है, हमें भी और किसी और के साथ, अपने फ्रेंड्स किसी के साथ भी बात करोगे तो उनको ये लगेगा कि यू वांट अ हैप्पी लाइफ, डजंट मैटर हु इज द पार्टनर, बट दैट इज नॉट द केस। Okay. दिस इज द पार्टनर हु यू ओनली वांट इट विद। तो ये इसको क्लियरली कम्युनिकेट करो। Even I wasn't realizing it until you said that. But that's हाँ, true. हाँ, तो ये तो यहाँ पे तुम स्टक हो, क्योंकि वो इंसान ये करने के केपेबल ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा था, तुम्हें तुम्हें हेड्स भी चाहिए, तुम्हें टेल्स भी चाहिए। वो जो दे रहा है उससे तुम खुश नहीं हो, और जो True. तुम्हें चाहिए वो दे नहीं सकता है, लेकिन तुम्हें बाहर भी कहीं पे एक्सप्लोर नहीं करना है। Yeah, I'm scared to तो फिर explore यू आर outside. करेक्ट, करेक्ट, यू आर स्केर्ड टू डू दैट। तो फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो देन यू आर देयर वेयर यू आर मेंट टू बी। यहाँ तो कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि यू आर स्केर्ड, एंड आई एम सेइंग देन स्टे स्केर्ड, देन डोंट डू एनीथिंग। So I'm scared to let him go, and I'm also scared to explore outside. So yeah, I can see it now where I'm stuck. And I feel that happiness is only with this guy. When that good एग्जैक्टली, phase happens, that is my यस, definition of happiness. With this यस। guy, when good phase is happening. And I want that तो फिर thing वो to be there. तो वो ब्रेड क्रम्स तो तुमको मिल ही रहे हैं। तुमने वो ब्रेड, तुम चाह रही हो कि वो ब्रेड क्रम्स जो हैं वो फुल कोर्स मील में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकते। वो केपेबल नहीं है, वो नहीं हो सकते। Okay. तो यही है रियलिटी। ये दिस इज वेयर थिंग्स आर। अब यहाँ से आगे क्या करना है ये तुम्हारा डिसीजन है, यही रियलिटी है। दिस गाय इज नॉट केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग दैट ब्रेड क्रम इनटू अ फुल कोर्स मील। तो या तो अब इसी से खुश हो जाओ। इसमें इसमें मैं एक चीज और बोलूंगी, विच इज लेस अबाउट द अदर गाय, मोर अबाउट रूपाली, कि दिस ब्रेड क्रम्बिंग is actually what you are attracted to, and you're not attracted to healthy people, healthy relationships, क्योंकि वहां they appear very boring। यहाँ पे वो एक्साइटमेंट है, बार बार ये जो एक एक्साइटमेंट होता है ना, विच एडोलेसेंट्स हैव ऑफ द न्यूनेस, उनको स्टेबिलिटी नहीं अच्छी लगती है, उनको वैरायटी चाहिए। बिकॉज एवरी टाइम द वैरायटी कम्स, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ हाइज, right? And that highs do not come in a stable healthy relationship. Stable healthy relationships are boring, they are Okay. stable, they are secure। तो वो जो हाइज से आपको एडिक्शन है ना, वो हाइज तो एक्चुअली यही बंदा ऑफर कर सकता है। द बिगर थिंग, as per my understanding, that you need to explore, इसकी आपको यही ब्रेड क्रम्बिंग क्यों अच्छी लगती है, राइट? यही ये जो हाइज एंड लोज हैं, कि इसका एडिक्शन क्यों है? इवन दो यू आर सेइंग दैट यू वांट अ हेल्दी रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, जबकि आपको ये चीज पता है कि ये बंदा तो ये दे नहीं सकता है, और आपको इस बंदे के लिए अट्रैक्शन इतना ज्यादा है। सो यू नीड टू ऑल्सो एक्सप्लोर कि ऐसा क्या ये करता है जिससे आपको इतना ज्यादा अट्रैक्शन है। एंड ऑल थिंग्स दैट ही इज डूइंग इज ब्रेड क्रम्बिंग यू, is giving you like the love bombing thing, ki there's the long periods of um, toxicity, and then there is very high amount of love bombing। तो वो love bombing से जो इतना ज्यादा
वो जो क्रेविंग होती है उस लव बॉम्बिंग की, वो लव बॉम्बिंग नहीं मिलेगी किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में, वो लव बॉम्बिंग नहीं मिलती है। दे आर वेरी, आई मीन उसमें हाईज एंड लोज होते हैं, बट ये वाले हाईज एंड लोज नहीं होते हैं, और टॉक्सिक हाईज इसके एंड लोज लोस भी नहीं होते हैं, दे बहुत आर ज्यादा लो सिचुएशनल है। हाईज एंड लोज। हाँ लेकिन हाई आने के लिए तो ज्यादा लो आना पड़ेगा ना, वरना हाई आएगा कैसे? Extreme low. And I think even that extreme low, maybe I might be addicted to that as well. I'm just thinking, it could be even that too, that I'm just fine to be a victim. God knows. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस इन योर आंसर्स एंड एवरीथिंग। और इसकी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि यू आर एडिक्टेड टू ऑल दिस। Yeah, I can see that. So basically, I'm और not. ये यहीं से मिल सकता है, तो अब तो ही तो हम बोल रहे हैं कि यू आर एडिक्टेड टू ऑल दिस, और ये दे रहा है वो इंसान, आपकी एडिक्शन को पूरा कर रहा है। तो इक्वेशन तो बैलेंस्ड है, इक्वेशन तो पूरी है, कुछ करने के लिए है ही नहीं यहाँ पे। But I want to get out of that cycle. I don't want these unhealthy addictions. नो यू डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल। वही तो तुम खुद ही तो बोल रही हो, यू आर स्केर्ड टू गेट आउट ऑफ दैट, बिकॉज इफ यू डू समथिंग देन यू लूज दिस गाय। तो आपका एडिक्शन का सोर्स बंद हो जाएगा ना, आपका सप्लायर, ड्रग्स का सप्लायर चला जाएगा। वो तो already चला गया है, तो there is no contact or anything. So it's not there only. और अब इतनी बातें करने के बाद अभी उसका मैसेज आ गया और वो वापस आ गया, और कल वापस आ गया, फिर तो ये सारी कॉन्वर्सेशन ये वहीं की वहीं रह जाएगी। तो यू आर ओनली डूइंग दिस बिकॉज अब कोई और ऑप्शन नहीं है, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ करने का। Mm-hmm. I think this time So I you are had not doing this because chosen. you are realizing कि how you are stuck। तो No, तुम this time एडिक्शन I से had बाहर नहीं निकलना chosen. चाह रही हो। नहीं, तुम्हारे आंसर से मुझे ये सुनाई दे रहा है कि मैं एडिक्शन से बाहर, तुम्हें एडिक्शन से बाहर निकलना है, तुम्हें ये नहीं रियलाइज हो रहा है। तुम अब ये बोल रहे हो, अरे अब तो ड्रग्स का सप्लायर ही नहीं बचा, तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन वो कल ही वापस आ गया तो फिर तो सारा काम खराब, फिर तो कुछ करने, क्योंकि फिर तुम वापस से उसमें चले जाओगे। तो यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग कि मेरे को इस चीज से बाहर निकलना है। वो है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है। Okay. तुम्हें खुद रियलाइज होना चाहिए ना कि मेरे को इस एडिक्शन को तोड़ना है, मेरे को इस एडिक्शन से बाहर निकलना है। लेकिन उस एडिक्शन से बाहर निकलने का मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप उस ड्रग सप्लायर से खत्म हो जाएगा, पर तुम्हें वो भी नहीं करना। तो इसको साइकोलॉजी में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? Just heard, but I don't remember now. I had heard it, I हाँ, think, so sometime during. you are displaying the characteristics of that। कि जब कोई इंसान किसी को किडनैप करता है, तो जो किडनैपी होता है वो किडनैपी उस किडनैपर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। Yeah, yeah. तो जब वो किडनैपर उसको छोड़ रहा है या रिलीज कर रहा है, तो इस किडनैपी को ना बहुत दुख हो रहा है उस चीज से, उसको वो रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना है। उसको उसको ना इस पूरी सिचुएशन की फकअप नहीं दिख रही है, उसको ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है। तुमको भी सिर्फ यही दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, तुम्हें पूरा फकअप नहीं दिख रहा है। Hmm. दैट्स अ स्टॉकहोम सिंड्रोम। Understood. तुम्हें तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि ये एक कोकेन सप्लायर है जिसने मुझे एडिक्ट कर रखा है, और मुझे इस कोकेन के एडिक्शन से बाहर निकलना है। तुम्हें ये दिख रहा है कि अगर मैं इस कोकेन के एडिक्शन से बाहर निकल गई तो फिर तो मैं इस सप्लायर से मिल ही नहीं पाऊंगी, फिर तो मेरे पास कोई रीजन ही नहीं रहेगा इस सप्लायर से मिलने का। एंड आई डोंट वांट दैट। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। Yeah, true. एंड आई एम सेइंग टू यू, तो फिर करना ही क्यों है कुछ भी? देन स्टे एडिक्टेड ना। But that
cocaine thing is not good for me, so I need to वो तो leave तुम्हारा it. ब्रेन बोल रहा है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल आंसर है। हार्ट का आंसर कोकेन से रिलेटेड ही नहीं है। हार्ट wants the relationship with the drug supplier. I think that Your drug brain is supplier saying, was very kind to me and he knew me so well. उसका तो So बात I'm just तो वो तो होगा ही ना। अरे उसकी तो कोकेन बिक रही है ना, ये क्या बात है? यही तो स्टॉकहोम सिंड्रोम है। okay. तो ड्रग सप्लायर तुमको कोकेन सप्लाई कर रहा है एंड द पर्सन इज वेरी नाइस एंड वेरी काइंड, और तुमको क्रेडिट के ऊपर कोकेन दे रहा है और तुमसे एकदम से पैसे भी नहीं मांग रहा और बाद में आके पैसे दे रहा है। भाई कितना अच्छा इंसान है, मेरे को तो उधार पे कोकेन दे दी। तुम ये बोल रहे हो इस समय। Got it. Okay. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि तुम्हें पूरी सिचुएशन, पूरे सेटअप का फकअप नहीं नजर आ रहा, तुमको सिर्फ ये नजर आ रहा है कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा सप्लायर है। इससे जैसे इसके बढ़िया सप्लायर कहाँ मिलेगा? मुझको ना 10% डिस्काउंट पे दे देता, मेरे को 20% डिस्काउंट पे कोकेन दे देता, मेरे को तो मुझे उधार पे दे देता। कोकेन से इतनी कोई लगाव भी नहीं है। आई थिंक मे बी होगी थोड़ी बहुत एडिक्टेड, बट मोस्टली मुझे एक स्टेबल एक पर्सन चाहिए जो हु इज ऑलवेज विद मी, हु अंडरस्टैंड्स मी एंड मतलब फिर से वही बात आ जाती है, तुम्हें स्टेबल पर्सन नहीं चाहिए, तुम्हें ये इंसान स्टेबल चाहिए। ओके, आई एम ओके टू लेट इट गो। आई थिंक तुम बार बार बोलती हो कि मुझे स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए मुझे, जो कि जब तुम किसी के साथ बात करोगी ना, हमारे साथ करो या अपने फ्रेंड के साथ किसी के साथ, जब तुम ये सेंटेंस होगी मुझे स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो सुनने में ये आता है कि देन यू आर ओपन, बट दैट्स नॉट द केस। तुम्हें ये इंसान स्टेबल चाहिए, तुम्हें स्टेबल रिलेशनशिप देने के लिए। इज ही केपेबल ऑफ डूइंग दैट? यू ओनली नो, आंसर दैट क्वेश्चन। नो। सो फिर I have given like multiple chances, like so many years and so many chances, but it's not. So he isn't. तो डिसीजन तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, क्योंकि द थिंग इज कि इफ यू आर सेइंग कि आई एम स्केर्ड टू लेट दिस गो, तो फिर तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, फिर तो यू आर ऑलरेडी देयर, फिर तो जो सेटअप है वो तो ऑलरेडी है, फिर तो यू आर, सब Mm-hmm. कुछ बढ़िया है फिर। Hey. तो एक तरफ तुम्हारा स्केयर है, एक तरफ तुम्हारा फियर है टू लेट दिस गो, और दूसरी तरफ तुम्हारी फ्रीडम है, दूसरी तरफ तुम्हारी हैप्पीनेस है, तुम्हारी आजादी है। वो तो तुम ही डिसाइड करोगी, वो थोड़ी हम डिसाइड कर सकते True. I can see that I'm हैं। हम attached to some sickness and I have to let it go for my happiness. I can see that now. and on top of that you are also attached to the kindness of your drug supplier। Yeah. see it that way कि ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है, कि एक किसी इंसान ने तुमको किडनैप किया और किडनैप करने के बाद वो तुमको अच्छे से रख रहा है, तुम्हें अच्छा सा खाना खिला रहा है, और तुमसे कितना काइंड इंसान है, मेरे को कितना अच्छा खाना खिला रहा है, मेरे को कितने अच्छे से रख रहा है। तुम्हारा ये ध्यान नहीं कि इसने मुझको किडनैप किया हुआ है, True. And तुम्हारा yeah. इस चीज पे ध्यान है कि इसने मेरे को मेरी मनपसंद का खाना खिला दिया, इसने मेरे से पूछा क्या खाओगे और मैंने बताया और उसने मेरे को चीज दे दी। कितना काइंड है, कितना बढ़िया इंसान है। Yeah, I think मैं छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रही हूँ कि जो वो अच्छा कर रहा है, बट जो बड़ी चीज है जो एग्जैक्टली वो खराब कर रहा एग्जैक्टली है तुम्हारा उस पे। एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली तुम छोटी चीजों पे ध्यान दे रही हो, तुम्हारा ध्यान बिग पिक्चर पे नहीं है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। Yeah, I'm just being played around. I can see that. या अनंत। You're on mute, Anamika. Anamika, you're on mute if you're saying. Okay, okay. I'm so sorry. Actually, I have some guests at place, so they were calling me.
Yeah. Were you asking me if I have anything to add, Akarna? I missed the Uh, last 15 yeah, I seconds. mean, I think I have said whatever I wanted to say. I suppose Rupali has understood. So I don't know, Okay. but Rupali, can you summarize this whole conversation? I don't know कि कितना समझा क्या समझा मुझे नहीं पता. So if you can Um, summarize this, what did you I get out? can say Or that where you are right now? I can see from all this today's conversation, I can see that there is a bigger problem which I wasn't able to see. One was I was just thinking the happiness is only with this one person, and I was attached to it, and I was thinking that the good phase with this person that continues, and that's my definition of having a healthy successful relationship. But I understood that that's wrong. This person is not capable of giving me what I want, so sticking around with that person is not good. And second, I understood that why am I so stuck to him is because it's a Stockholm syndrome, wherein the victim is um addicted to the kindness of that kidnapper, and just see the small things, the breadcrumbs, we just see that, and we don't see that they have actually kidnapped, or they have actually occupied our whole life or whole time, or all these years they have just taken it away from us, and they are just using us for their own whatever they want in their life. So that's another Hmm. thing that I realized. So if I have to overcome all this, I will need to let that go, let that person go, and everything just go, and work on myself, and I then don't think कि you have to do any of that. पहली बात तो मैं यही बोल रहा हूँ. ये जो let okay. go, let that go वाली लैंग्वेज ही मुझे समझ नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट. मैं तो Mm-hmm. ये तो तुम इस पे क्यों इतना फोकस कर रही हो कि let go, let that person go and all that. Because You focus on your it will. hurts नहीं, सुनो to. तो एक मिनट. Okay. पहली पूरी बात मेरी सुन लो. Why I am saying कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको समझा रहा हूँ कि मेरे को ये क्यों समझ नहीं Okay. आ रहा है. क्योंकि जब तुम अपने ऊपर काम करोगी एंड यू heal yourself, you come out of this. If this person is capable of valuing that, then give him that chance ना. तुम अभी इसे ये क्यों डिसाइड कर रही हो कि लेट दिस गो, लेट दैट गो एंड ऑल दैट. तुम तुम अगर तुम अगर बेटर हो रही हो एंड दिस गाय वैल्यूज दिस रिलेशनशिप और उसको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप हाथ से निकल रही है, हम्म, और फिर उसके लिए वो फाइट मार रहा है, इजंट दैट व्हाट यू वांट? Yeah. हाँ, तो फिर उसको वो चांस तो दो ना. अगर उसके Okay. हाथ से वो रिलेशनशिप निकल रही है, तुम निकल रही हो उसके हाथ से, वो फाइट मार रहा है, तो इसमें गलत क्या है? तो मुझे कैसे पता तुम अभी चलेगा से ये क्यों? कि वो तुम्हें रियल पता में कैसे नहीं चलेगा? किस. अरे Okay. कैसे नहीं पता चलेगा? तुम you have healed yourself and you have understood how to identify red flags and no nonsense Okay. bullshit and all that. उसके बाद भी you are saying कि मुझे कैसे पता चलेगा? ये कैसी बात है? Okay, got it. Like when I'll be fully healed, then I will realize, understand that if अगर he is तुमको coming ब्रेड back to क्रम्स नहीं kidnap चल रही me. हैं, हाँ, हाँ. तुम्हें Okay. तुम तो, वो तुम्हें अभी भी ब्रेड क्रम्स दे रहा है और तुम बोल रही हो मेरे को ब्रेड क्रम्स नहीं चलेंगे. यू आर रिजेक्टिंग दैट. Yeah. तो उसको अगर अगर उसको इस चीज की वैल्यू होगी तो वो फाइट मारेगा ना. पिछली बार और उसने अगर वो फाइट फाइट, किया था, और अरे फाइट he gave तुमसे me नहीं what बोल रहा I. हूँ कि Yeah. नहीं, I am saying that he did fight to make this work again, and then he did give me, but it was only at that time, and later on again it was पर back to उस the टाइम पे cycle. पर उस टाइम पे यू वर अ हील्ड पर्सन. I was halfway there. Like I had done certain things and I was there almost, but I don't think fully there. हाँ, So तो I फिर just got trapped देन again. हाउ. हाँ, तो फिर यू वर नॉट. Yeah. तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट सिचुएशन नाउ? सो आई एम सेइंग कि मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपने ऊपर काम कर रही हो, अपने ऊपर फोकस कर रही हो, एंड यू आर एबल टू
assertively put yourself across कि मुझे ये चाहिए. तुम दे सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो बाहर और जगह पे बहुत जगह पे मिल जाएगा. True. Right? If he is Right. getting that message very very clearly Yeah. कि you are not dependent on this person anymore, Right. और अगर वो उसके लिए अब फाइट मार रहा है और तुमने उसको क्लियरली बता दिया कि भैया सॉर्ट योर सेल्फ आउट, मेरे पास तब आना व्हेन यू हैव सॉर्ट योर सेल्फ आउट एंड देन वी विल सी, और एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. अगर Right. उसको इस चीज की वैल्यू है तो वो उठ के करेगा. नहीं तो जैसे वो बोल रहा है अगले महीने, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, फाइन. यू आर सेइंग कि आई एम नॉट वेटिंग, मेरा हो गया. आई विल बी वेटिंग इफ यू आर इन द एक्शन मोड. आई विल नॉट बी वेटिंग इफ यू आर इन द प्लानिंग मोड ओनली. प्लानिंग मोड में तो तुम बहुत टाइम से हो, एक्शन मोड में आ जाओगे तो आई कैन वेट. बट Right. अगर वो बंदा एक्शन मोड में नहीं आ रहा है तो इजंट ही वेरी क्लियरली टेलिंग यू हाउ मच ही वैल्यूज यू? Right. One way or the other you will find out how much he values this. Mm-hmm. Yeah. कि तुम कुछ भी करो, तुम कैसे भी हो, जो भी हो, वो तो वही रहने वाला है जो है. तो isn't he very very clearly telling you with his actions, with his words and everything कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Hmm. तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है फिर? So I think I'm calling it love or care from my side. I am calling it that, but हाँ. it could be that I'm just there is just that attachment. What you were talking about, that Stockholm syndrome thing. It could be just that. But I was हाँ. thinking that it's love from my side that's holding me back. So for this I am saying कि instead of saying कि I need to let this go, I need to do this, I need to do that, मुझे लग रहा है कि जरूरत ही नहीं इन चीजों के बारे में बात करने की. बिकॉज if it is meant to happen, it will happen. If it is not meant to happen, it will fizzle out automatically. Hmm. You don't have to do anything. It will happen. You only have to do what you have to do for yourself. Okay. So तुम the अपने ऊपर moment. फोकस करो, अपने आप को ठीक Uh-huh. करो. Okay. और अगर उस चीज की वैल्यू उसको होगी, if he values you, if he truly loves you, if he doesn't want to let go on this relationship, he will come. Yeah. He will pick up pace. He will, वो उठेगा, करेगा. तो उसको कहीं ना कहीं वो बम पे लात पड़ने की जरूरत है. Hmm. Right. और वो उसको इसी चीज से आएगी कि बेसिकली व्हेन यू आर गिविंग हिम दैट काइंड ऑफ अ मैसेज वेरी वेरी असर्टिवली कि आई एम गोइंग, आर यू कमिंग और नॉट, बेसिकली. Yeah. अभी तो उसको ये पता है कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. ही नोज दैट वेरी वेल, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. बेसिकली एक सोने के पिंजरे में कैद कर लिया है और तुमको ना सिर्फ सोने का पिंजरा दिख रहा है और तुमको कितना सुंदर है, मुझे तो ये Yeah. खाने के लिए मेवा दे रहा है. Right. लेकिन सोने के पिंजरे के अंदर कैद हो ये नहीं दिख रहा है. सोने का पिंजरा दिख रहा है कि कितना एक्सपेंसिव पिंजरा लिया है मेरे लिए, कितना, हाउ मच ही लव्स मी. Yeah. I can see that what you're saying now with all the examples that you gave. Yeah. So the right step would be just to focus on myself and work on my things. यू And फोकस once ऑन योर I'm, सेल्फ. उसको yeah, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा. बोथ वेज इट विल शो योर वैल्यू इन हिज आईज. yeah, बोथ वेज यू विल गेट योर आंसर. हाउ मच ही वैल्यूज दिस, हाउ मच यू वैल्यू दिस, वो तो दिख रहा है. mm-hmm, राइट? वो तो yeah, दिख रहा है कि यू वैल्यू दिस टू द एक्सटेंट कि तुम खुद बीमार पड़ रही. yeah,
तुम कितना वैल्यू कर रही हो वो दिख रहा है, लेकिन वो कितना वैल्यू करता है अब वो देखने का टाइम, अब वो टेस्ट करने का टाइम। Okay. और दोनों ही केसेस में तुम्हें समझ में आ जाएगा, इफ ही डजंट कम बिहाइंड यू देन यू नो वो था ही Yeah. नहीं कभी। वो सिर्फ तुम एक अपने आप को इमेजिनरी कुछ तो बता के तुम चिपकी हुई थी उस चीज से, बट वो था नहीं कभी। Right. तुम्हें भी उसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि वेयर यू स्टैंड। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देर इज नो नीड टू टेल योर सेल्फ आई नीड टू लेट दिस गो, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू, आई एम सेइंग गिव दैट गाय अ चांस टू प्रूव इट टू यू, लेट Correct. दैट गाय टेल यू ना। हाँ, तो आपको लेट गो करने की क्या जरूरत है? आप अपनी तरफ से अपने ऊपर काम करो, उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वो लेट गो तो अपने आप हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली। Hmm. और आ गया तो बढ़िया है, दैट इज व्हाट यू वांटेड एज वेल। Okay. दोनों ही ऑप्शन के लिए सॉल्यूशन तो सेम है, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। Okay. Now I get it. Cool. All right, thanks for Thank you so that. much. No problem. Hmm. Nothing to add from my side. I'll just say to Rupali कि अब it's high time कि छुट्टी दे दो, release yourself from this bondage and release him also from this bondage. ये जो bondage है ना साथ साथ रहने वाला, और ये जो इतना ज्यादा ये घूम घूम के entanglement चल रहा है, अब freedom दो अपने आप को भी, so that you can live your life, you can make your own decisions, you can choose and give him also freedom कि उसको चेंज होना है नहीं होना है, आपके साथ रहना है नहीं रहना है, because if it is love, not necessarily all love needs to be needs to end up into a relationship. ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि the only जब तक आप रिलेशनशिप में नहीं आ जाते, साथ साथ पूरी जिंदगी नहीं बिताते, इट्स नॉट लव. If there is love, there is no such thing as unloving people. Mhm. लव का रिलेशनशिप से लेना देना तो है, लेकिन एक एंगल से लव अपनी जगह भी है. जैसे कि आई स्टिल रिमेम्बर सो मेनी पीपल इन माई लाइफ जिनके साथ अभी मेरा वो रिलेशनशिप नहीं है, बट आई नो दैट द लव स्टिल एग्जिस्ट इन माई हार्ट एंड देयर हार्ट, द रिस्पेक्ट स्टिल एग्जिस्ट. हम कभी मिलेंगे तो इट विल बी द सेम वे, बट बिकॉज वी आर वेज अपार्ट, we don't talk or we don't meet or we don't continue the relationship, whatever. तो जब हम इस टाइप की चीजों की बात करते हैं ना, तो लव एक चीज है और रिलेशनशिप एक चीज है. ठीक है, अभी हम रिलेशनशिप वाले लव की नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लव की बात कर रहे हैं. Mhm. तो उसकी ना इतनी जो चिंता है ना, वो छोड़ दो, क्योंकि अगर वो है तो वो रहेगा. बिकॉज ऐसी कोई मशीन नहीं है जिस चीज से आप लव को अनलव कर दो. या तो वो है या तो वो कभी था ही नहीं. तो अगर फ्रिजल आउट हो जाता है तो पता चल जाएगा कि वो नहीं था, एंड दैट इज ऑल्सो ओके, Mhm. राइट? क्योंकि अपने आप को ये झूठा दिलासा देना कि आई लव हिम, ही लव्स मी, लव हिम लव्स मी, ये इससे क्या मिलेगा? कब तक इससे कितना जूस निकालोगे? बताओ, गन्ना अब सूख चुका है, छोड़ दो जूस निकालना, Okay. राइट? सो गिव योर सेल्फ फ्रीडम, गिव हिम फ्रीडम, एंड Yeah. लाइक अकर्मा वाज सेइंग, फोकस ऑन योर सेल्फ. इस गन्ने से अब और जूस नहीं निकलने वाला है, हो गया, अभी इट हैज ड्राइड. Right. True. So I've been noticing like 24/7, even if I'm doing something, sometimes some thoughts are always there, and it has really taken up all my, I would say, intelligence, or whatever, like my presence of mind and all those things. It has been challenging me on those things, which was never the case before. But now
I can see it is affecting my like growth or whatever. It is impacting me, and it's not good at all. Even I want to let it go. And I don't want to use that word let it go, because Akarma said there is nothing like that. So I will just focus on healing myself and being better and just being happy and independent. And you let the pain intensify. आपको दिखना चाहिए कि आप क्या cost पे कर रहे हो. When you expand your perspective, be okay to see the cost that you're paying by being into this place and how it is impacting all the different areas of your life. And when you're saying that you want a healthy, stable, happy relationship, like come to the space where you really want it. Like want it enough so that it matters to you, your life matters to you, because each day, each hour is very, very precious. और वो बस ऐसे ही निकल रहा है, राइट? वन एट अ टाइम. और ये जो भी चीजें हैं, इससे किसी को एड ऑन नहीं होता. ऐसा नहीं कि आप ये सब चीजों में फंसे हो तो आपका जो भी एक्स पार्टनर है उसको कोई कुछ मिल रहा है या आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो. It's something which is like a sunk cost, not adding anything to anybody's life. और जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ एड ऑन नहीं कर सकते, आप किसी और की लाइफ में कैसे कुछ एड ऑन कर पाओगे? पहले अपनी लाइफ में तो कर लो. पहले अपने लिए अपनी लाइफ को तो प्रेशियस बना लो. Right? So see all of these things, that why this is important for you, what that stable relationship looks like, what your life will look like when you have it. Become comfortable with boredom. Boredom is not bad. Become comfortable with that. जब भी ये addiction वाली feeling आए ना, ये drug addiction वाली, you need to tell yourself that boredom is okay. Right? क्योंकि healthy relationships में ये चीज होगी. उसमें इस टाइप के हाई लोज, टॉक्सिक हाई लोज नहीं आते हैं. उसमें एक स्टेबिलिटी आती है. द हाइज एंड लोज आर बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, क्योंकि लाइफ ऐसी होती है. ठीक है, लेकिन वी मूव थ्रू दोज हाइज एंड लोज. वी डोंट क्रिएट हाइज एंड लोज. यहाँ पे तो क्रिएशन ही चल रहा है, क्योंकि मजा आ रहा है हाइज और लोज क्रिएट करने में. प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे तो आप क्रिएट कर रहे हो प्रॉब्लम्स क्रिएट. I can see तो that. ये तो this is not a very productive use of life, na? True, not at all. Like, we are not doing anything for neither ourselves, neither our families, or neither even for the society or anything. And I want a relationship where the partner and we do something together for the society. I want something like that, where we are being productive and our life is going for a good cause and not just to, like, keep fighting amongst each other. I don't want that. Keep these things in mind. Start of your journey, and yeah, you know the paths. You have everything in your hands. It's just about doing it. Yeah. Yesterday itself, I was watching Importance of Attachment Styles, and I was watching again. I started it, so I will continue. Okay, good. Cool. Okay, then we will wrap up today's call. Thank you so much, Rupali, for opening up and talking. Good. And thank you so much. Thank you. And thank you everyone for joining us. Thank you everyone. Thanks. Bye. Good Thank night. you everyone. You guys. Okay. Good night, guys. Take care. Good Bye-bye. night. Bye-bye. Bye. Thank Good you. night. Thank you. Bye-bye.